Assalamu alaikum, dear scholars. I welcome you in this third lecture. Today is 26th April 2020 and Sunday. We have to study today the research designs and principles of research design, that is also known as the quantitative research methods. Herein we will go through the different research designs for quantitative research. As earlier I told you that I am happy with your feedback. Most of you have written the assignment in well mannered way and with deep understanding. Many of you acquired 15 out of 15 marks, and major bulk is between 10 to 15. Whereas some people have not done up to mark, but they have tried. I am again happy with them. They should put more efforts, and they can be able to make their assignments in proper way. You are required to write questions and ask me when I allow you. One of you in the previous class taken the responsibility for attendance, and he was of the point of view that I will take a screenshot of attendance and WhatsApp me. I am unmuting your. Who is the person who took the responsibility for attendance through screenshots? Hello? Hello? Yes, sir. उमर खान, आपने कहा था कि मैं अटेंडेंस ले लूंगा. सर मैंने कहा तो नहीं था, लेकिन अच्छा चले. I don't know, मेरे ध्यान से बेहतर हो जाएगा. स्किप हो गया. सर बात सच ने कहा था जी सर बात सच ने कहा था बोलेंगे. जी आपने कहा था, मुझे नहीं समझ नहीं आ रही. नहीं, वो कह रहे हैं कि बासित ने शायद कहा था. शायद वो प्रेजेंट नहीं है बासित साहब. शायद ओके. आप में से ये काम कर सकता है? जी सर, ये जीआर या सीआर करे ना. I don't know who is GR. In last class I think सीआर ही बात कर रहा हूँ सर. सीआर ही बात कर रहा हूँ. GR कौन है, पता है कोई? आयशा ना. ओके, तो आयशा आप हैं क्लास में? जी सर. हेलो. जी आयशा आप. वालेकुम अस्सलाम. आप GR हैं? जी सर. तो प्लीज हेल्प मी आउट टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर अटेंडेंस. जी श्योर सर, श्योर. हाँ, ये जो फर्स्ट सेशन जब हमारा खत्म होगा तो वो जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अटेंडेंस लगा लूंगा. जी ठीक है. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आपने हैंड रेज करना है, किसी ने भी जब कोई क्यूरी हो, कोई बात करनी हो तो. I acknowledge today's lecture. It is taken from Frankel's book, that is How to Design and Evaluate Research in Education. As earlier I declared that in education means system of education, where we are concerned with the teaching and learning. It doesn't mean only the teacher education where some certification is done. So it's for all of the social sciences. All of this research design presentation has been taken from this book. What research design is, to define it, we can see it refers to the plan, structure, and strategy of research. We can say this the blueprint that guides the research process. So when we say
the research design, it's basically the component of methodology according to which the researcher have to decide what type of research he or she is going to conduct, and what is in according with his research objective and suitable to his variables, and will be more relevant to his research problem. So it's a total plan or structure. When we discuss the plan or structure, then another prevailing relevant terminology that can also be used, that is known as the research proposal, research plan, research structure, so and so. In previous class, I discussed about research plan or research proposal. I repeat it. It starts from the research title, its introduction, and rationale of the study, research objectives, research questions. When I said research rationale, then there is the problem statement as well. Then research objective, research question, hypothesis, limitations of the study, delimitations of the study, and it's all about the first component. Then start second, that was methodology. And in methodology, the first component is the research design. It comprised of population. There are three types of population: target population, generic population. Here have a sample or sampling. That is, sampling can be done out of the defined population. Then there is research instrument, are known as the instrumentation as well. The type of instrument or construct we take for collection data that might be developed by the researcher themselves, or can be adopted, can be adapted. Then there is the stage of conduction of pilot study, or piloting of the research is also known as this. Then administration of this research instrument, collection of data, data analysis, and data interpretation, yielding results, defining these results, interpretation of these results, and then is the report writing that constitutes of conclusions, recommendations, and suggestions, followed by some annexures. Annexures में वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया था या अडेप्ट किया, कहाँ से लिया था, वो साथ लगा देते हैं। और कोई अगर प्रोटोकॉल तय किया हो, गाइडलाइन तय की हो, वो साथ लगा देते हैं। तो ये एक सारा प्लान है, फॉर्मेट है, रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स हैं। आपको याद होगा इन द लास्ट क्लास आई डिस्क्राइब दैट इट हैज 18 to 19 factors or components. So all of the game of the research across the world, rather it is specifically in the social sciences, is comprised of all this process. Apart from that, you go for a research article or for an thesis or any other type of research project. So I think so. जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसको हमें रिपीट करते रहना है बार बार, ताकि हमें इसकी याद आनी होती रहे. The first research design is the experimental design. When we go for the research designs, the first and foremost design of research is experimental design. मैं यहाँ रुक के एक बात आपसे ये कहूँगा, आप सब लोगों ने मुझे ईमेल किया हुआ है कि मैं एक्सेस दूं आप लोगों को जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो डाउनलोड करने के लिए. तो माय
Dear and respectable scholars, my request is that you can access them only when you are logged on with your Minhaj University official ID. Otherwise, whenever you go for login with your personal ID at Gmail, there will be needed the permission to access all of the data, all of the resources, all of the videos. University have allocated official email ID. All of you, I repeat that कुछ भी नाम आपका होगा या आपका ईमेल आईडी में स्टार्ट में कुछ भी वो आपका नंबर होगा, लेकिन एट द रेट के बाद लिखा होगा mul.edu.pk। तो जब तक आप उससे लॉगिन नहीं होंगे आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। सो यू आर रिक्वेस्टेड log in always with your official email ID. Then the link of the drive posted in the CMS will be opened and you can access those all recorded videos of the lecture. Do remember and don't repeat your experiments again and again. मैंने कल देखा वहाँ ऑलमोस्ट सब लोगों की ईमेल आई हुई थी और अपने पर्सनल आईडी से आई हुई थी। तो यहाँ हमें पर्सनल नहीं होना, यहाँ हमें प्रोफेशनल होना है। मैं भी अपने प्रोफेशनल आईडी से जो मुझे मिनहाज ने दिया हुआ उससे लॉगिन हुआ हूँ, तो आप भी उसी से ही होंगे। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट experimental research design. In this research design, conditions are controlled so that one or more independent variables can be manipulated to test a hypothesis about a dependent variable. It allows evaluation of causal comparison relationship among the variables. It also allows while all other variables are eliminated or controlled. मैंने इसकी एग्जांपल ये दी थी, एक्सपेरिमेंट में आप टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेम्परेचर है या प्रेशर है या दोनों ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है चाय का बनना या हंडिया का पक जाना या आप ये कह लें कि एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाना। तो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के लिए अगर कम टाइम में उस पर पहुंचना है तो टेम्परेचर हम रेज करें हमारे कंट्रोल में है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स आई रिफर्ड कि आप अगर उसके ऊपर जो बर्तन के ढक्कन देते हो, लिड देते हो, अगर वो दिया हो तो वॉल्यूम प्रेशर उसका बढ़ जाता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। सो दिस इज द बेस्ट fit example of the experimental research. Likewise, अगर आप लर्निंग एनवायरनमेंट में बात करें तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर आप एक रीडिंग दे देते हो और एक सर्टेन टाइम दे देते हो और क्लासरूम एनवायरनमेंट को फोकस करते हो कि वो उतने टाइम में जस्ट उन्होंने रीडिंग करनी है, कोई और टाइम ही नहीं। उसके एक्स्ट्रा जो अदरवाइज वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप कहते हो जी मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, आप बाहर नहीं जा सकेंगे, आपके पास 40 मिनट्स हैं, इसके अंदर आपने इस लेसन को रीड करना है और पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। तो ये आप कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। इससे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रीडिंग है वो इम्पैक्ट करेगा उनकी वोकैबुलरी या लर्निंग पे या अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप इसको ओपन कर दें, कन्वेंशनल रहने दें, तो वो नतायज हासिल नहीं हो सकते जो इस तरह कंट्रोल करने से हुए हैं। दिस इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन व्हाट हैपेंड, conditions are controlled
क्यों कंट्रोल की जाती हैं? क्योंकि वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उन्हें मैनिपुलेट करना होता है उस हाइपोथेसिस को जो भी आपने तय किया था, जो आपकी रिसर्च से मुतल्लिक है। और वो हाइपोथेसिस आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से मुतल्लिक होता है, उसको के लिए हमने उसको जांचना होता है। यूनिकनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये बड़ी स्मार्ट स्टडी होती है और स्ट्रांग स्टडीज हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दुनिया भर के अंदर, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये इतना स्ट्रांग डिज़ाइन है कि तमाम वो इसकी जो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, कम टाइम लगता है और ट्रू रिजल्ट सामने आ जाते हैं। और एवेल्युएटर्स अगर इस पे आप थीसिस करें, थीसिस में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर लें या रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आप रखें, तो ये चीज़ें जल्दी पब्लिश होती हैं, जल्दी एक्सेप्ट होती हैं, रिव्यू करने वाले खुशी से इसको रिव्यू करते हैं। वेयर एज आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में चले जाएं, थ्योरेटिकल लिखना करें शुरू करें, तो उन पे टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब बाकी रीडिज़ाइंस की अपनी अहमियत है रिसर्च के अंदर, लेकिन ये थोड़ा-सा बाकियों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होने की वजूहात हैं। वो आप देख सकते हैं कि देयर आर द टू important aspects due to which the experimental design is unique. Only one type of research that attempts to influence a particular variable. Number two, best type of research for testing hypotheses about cause and effect relationship. Other designs में हमें multiple hypotheses, multiple objectives बनाने पड़ते हैं। ये एक सिंपल स्नैपशॉट स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि ज़ुबैर खान का जो टीचिंग स्टाइल है क्लास के अंदर, वो कौन सा अच्छा है? क्या ये लेक्चर मेथड से जब पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे, या जब ये उन्हें लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा उसका असर होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे? तो सिंपल इज़ दैट, क्लास की अगर तादाद 20 है तो उसको 2 ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं। उनको प्री टेस्ट कर लेते हैं, उनका एक स्कोर जो भी निकलता है उनके टेस्ट का उसको नोट कर लेते हैं। फिर आप कम से कम 4 हफ्ते की इंटरवेंशन करते हैं। एक ग्रुप को यूजुअली पढ़ाते रहते हैं जिस तरह पहले से पढ़ा रहे थे। उसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। सेकंड ग्रुप जिसमें आपने इंटरवेंशन करनी है, स्पेशल मेथड से पढ़ाना है, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसको डिफरेंट वे से पढ़ाया, वही सबक जो दूसरों को पढ़ाया जा रहा था। बंदा भी पढ़ाने वाला सेम है, क्लास भी सेम है, हिस्से 2 किए हुए हैं, टाइम सिमिलर है, लेकिन जितने टाइम के लिए उसको कन्वेंशनली पढ़ा रहे हैं, इसको एक स्पेसिफिक मेथड से पढ़ा रहे हैं। टेस्ट आपने दोनों का पहले ले लिया था, ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले कि उनका स्कोर क्या है, और यूनिकनेस एंड होमोजेनिटी भी चेक कर ली थी स्टूडेंट्स के लेवल की। उनको जब तकसीम किया था तो ये नहीं था कि सारे होशियार बच्चे या अच्छे बच्चे एक साइड पे हो जाएं या सारे नालायक एक साइड पे हो जाएं। उन्हें इस तरह मिक्स किया था कि वो क्लास बैलेंस्ड बनी, दोनों ग्रुप बैलेंस बने। अब जब 4 हफ्ते की इंटरवेंशन की, उसके बाद आपने दोबारा उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के पे जो स्कोर आया, उससे हमें समझ आ जाती है कि क्या जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट में बच्चों की स्कोर पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। अब चूँकि ये रिसर्च है, ज़रूरी नहीं है कि फ़र्क पड़े। रिसर्चर का काम अपनी रिसर्च कंडक्ट करके लोगों से अपने रिजल्ट्स शेयर कर देना है, ना कि वाक़ई में वहाँ शो करना है कि इसका असर हुआ है। हो सकता है कि अचीवमेंट स्कोर दोनों का सेम भी हो, तो सेम होगा तो हम कहेंगे कि दोनों जो मेथड ऑफ टीचिंग थे वो सेम ही थे, उनका स्टूडेंट्स की
अचीवमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आया, और अगर डिफरेंस आता है उनकी अचीवमेंट तो हम बता देंगे कि ये फलां जो मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी उसकी वजह से ये इंटरवेंशन का ये इफेक्ट हुआ है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? जहाँ पे कहीं आप फील करें कुछ पूछना है तो आप अपनी स्क्रीन पे हैंड रेज करें, मैं आपको मौका दूंगा बात करने का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लुक्स एट द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जिस तरह मैंने अभी बात की ट्रीटमेंट की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इसमें ट्रीटमेंट होती है। जो भी आप इंटरवेंशन करते हैं, जो आप नई चीज उन्हें देते हैं, जो आप तरीकाकार नया इख्तियार करते हैं, जिससे आप देखना चाह रहे हैं कि इसके उस पे क्या रेलिवेंट असरात पड़ेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आउटकम होता है बेसिकली। सो ट्रीटमेंट एंड आउटकम आर द major variables in the experimental research. Characteristics of experimental research. First one है जी comparison of groups. ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको एग्जांपल दे दी कि दो ग्रुप बना के आप उनको कंपैरिजन करते हो, लेकिन हम यहाँ इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, दो इसमें ग्रुप बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट whereas control or comparison group receives no treatment. एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं। An experimental study of teaching English through direct and traditional methods at secondary level. अब देखें ये रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ टीचिंग इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड एक है और दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड। लेवल कौन सा है रिसर्च का? जो सेकेंडरी है। Participants of your research are secondary level students. रिसर्च साइट जो है ये कोई ना कोई सेकेंडरी स्कूल होगा। अच्छा, मजेदार की बात है, इसमें स्कूल्स नहीं होंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो एक स्कूल ही काफी है और उसकी एक क्लास ही काफी है। तो एक्सपेरिमेंट किस बात पे करना है कि दो तरह के मेथड ऑफ टीचिंग है, एक डायरेक्ट टीचिंग इंग्लिश मेथड और दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, ये अलग स्टोरी है, अलग बात है, समझना कैसे है इनको कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। ये आप वाइज इनफ हैं, हम चूंकि सारे डिफरेंट तरीकों से पढ़ के ही आए हैं, हमें अंदाज़ा है ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे कि चलें खड़े हो जाएं, रीड करें, इसकी ट्रांसलेशन करें और सबसे शेयर करें, और या टीचर बस इसको करता जाए और इन डेप्थ चीज़ों की क्लैरिटी ना दे, बहुत सारी चीज़ें और इस तरह से शामिल हैं। तो बहरहाल इन दो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को कंपेयर करना है सेकेंडरी स्कूल के तलबा पर किसी एक क्लास में, ये एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट मेथड जो होगा ये आपका होगा ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड जो है या जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं वो तो पहले से ही प्रिवेल कर रहा है, तो वो कंट्रोल ग्रुप होगा, उससे कंपैरिजन हम करेंगे। एक क्लास लेंगे, 10वीं क्लास है, 50 बच्चे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि उनको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे उनकी अपनी जहानत और उसकी बुनियाद पर, या जो हम पहले से एक टेस्ट ले लेंगे उसके स्कोर की बुनियाद पर उनको अलग अलग कर लेंगे। 25-25 के दो ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए ग्रुप पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश पढ़ाते हैं। ग्रुप बी को हम ट्रेडिशनल मेथड से ही चलते रहते हैं। फिर उनको 1 महीने बाद जो ये ट्रीटमेंट जब हम दे लेंगे तो हम उनके फिर टेस्ट लेके स्कोर निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या उसका कोई फिर उनको कंपेयर करेंगे, दोनों के अचीवमेंट के जो टेस्ट होंगे उन्हें कंपेयर करेंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मेथड का बच्चों की
लर्निंग पे कितना असर पड़ा है। अच्छा, अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं इस सेशन के। मैं 2 मिनट पहले इसको स्टॉप करूंगा और आपसे क्वेश्चन लूंगा और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे अगले सेशन में। मीन टाइम में आपको CMS पे नया आईडी और वो सेंड कर दूंगा। क्वाइट पॉसिबल कि सेकंड सेशन भी इसी आईडी और पासवर्ड से शुरू हो जाए। अगर वहाँ पे CMS पे नया पोस्ट नहीं होता तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि हम इसी पे ही आगे चल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे अहम और खूबसूरती की बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं रिसर्चर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको कंट्रोल कर सकता है, उस पे उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है। क्योंकि मैनिपुलेशन से आसान लफ्ज़ और क्या मैं बताऊं। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन मीन्स द रिसर्चर डिसाइड्स which form of independent variable to take and which group gets which form. They decide the nature and the extent of the treatment. ये रिसर्चर को डिसाइड करना है कि उसके ट्रीटमेंट की नेचर क्या होगी और क्या एक्सटेंट होगा, किस हद तक वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज बीन administered, researchers observe or measure the groups receiving the treatment to see if they differ. ये बातें मैंने की हैं कि जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो एंड पे देखते हैं कि उनमें फर्क क्या पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च enables researchers to go beyond description and prediction. Very interesting thing, जो डिस्क्राइब किया हुआ है और जो प्रिडिक्ट करने का ख्याल है और जो कोई अटेम्प्ट की जा रही है, डिटरमिन किया जाता है कि काजेशन से ये होगा, उसके अलावा भी कोई बात हो सकती है। जो रिसर्चर के माइंड में चीज़ें हैं उनसे हट के भी कोई बात हो सकती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज one form of variable versus the direct method versus traditional method. Presence versus absence of a particular form, teaching with and without multimedia. Varying degrees of the same form. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर से ये चीज़ें भी निकल सकती हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब करना है तो कंपैरिजन में प्री डिसाइडेड चीज़ें ज़रूरी नहीं है वही आए। और ये जो अभी तीनों चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं ये तो प्री डिसाइडेड नहीं थी, इनका तो नहीं पता था कि ये भी इस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स जो हैं वो ये बात भी हमें देते हैं कि डायरेक्ट मेथड वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड, ये तो हमने डिसाइड कर लिया था टाइटल में। लेकिन प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, कोई एक सर्टन फॉर्मुलेशन या फॉर्म थी जो हमें अंदाजा नहीं था। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया को तो हमने कंसिडर नहीं किया टाइटल में, लेकिन मल्टीमीडिया से पढ़ाना और मल्टीमीडिया के बगैर पढ़ाने की मौजूदगी में भी वजह से भी कुछ चीजें हाईलाइट होती हैं, फर्क पड़ते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पे। वेरियंग डिग्रीज ऑफ द सेम फॉर्म। अब मतलब यहीं अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, मैं और आप हर संडे को मिलते हैं 3 घंटे के लिए, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन हर जो हमारा लेक्चर है सेम पेस पे, सेम बर्थ पे नहीं होता। हालांकि हम ये ऑनलाइन जूम कर रहे हैं और सारा कुछ है, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं कि डे बाय डे इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसमें और इसकी एक्सेस में एक्चुअलाइजेशन आ रही है। पहले दिन हम इस पे इतने फ्री हैंडेड नहीं थे, इतने शार्प नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको मैनेज करना, ऑनलाइन को
और जूम और रिकॉर्डिंग और उसको सुनना, क्वेश्चन करना, रेज करना हैंड, वट एवर द थिंग्स आर, वो अब फर्क है। अल्टीमेटली ये कुछ शेप्स तो, लेकिन इनको ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खूबसूरती कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डिसाइड हम कर सकते हैं कि ये चीजें मेजर करेंगे, इन्हीं में ही रहना है। बट एनीवे, these are the characteristics of experimental research design. Randomization बेसिकली जब हम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल करते हैं, तो मैंने बताया ना कि 50 बच्चे हैं और उसमें आपने 25-25 का ग्रुप ए और बी बना लें। किस बुनियाद पर बना लें जी? तो रिसर्च ये कहती है कि उनकी सिलेक्शन रैंडम सिलेक्शन होगी। सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कुछ सेपरेट हैं, क्वांटिटेटिव के लिए सेपरेट हैं। इन टोटल इन टेक्निक्स को हम अगर बात करें तो इनकी दो तरह की हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल रैंडम सैम्पलिंग। और जब हम इनके आगे फर्दर डिजाइन अपना फर्दर जाते हैं टाइप्स की तरफ, तो ये कुछ 12 टाइप्स बनती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए लाजमन है कि रैंडम सैम्पलिंग हो। Random assignment is similar but not identical to the random selection. So we are getting short of time for this session from Google Zoom. In next session we will discuss in detail the randomization. I am going to unmute all of you. If you want to say something, you are most welcome. यार आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं? हेलो जी सर, जी ले लिए सर। मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर? जी 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 सर है, मैम आई सेंड यू। जी मुझे उस पे आप कर देंगे। अभी तक की कोई बात किसी ने करनी है इस पे? कोई क्वेश्चन? मोहम्मद कासिम, do you want to say something? Anybody else? Should you have any question, please pose that. जी यार एनी प्लीज मेरी हाजिरी जरा कंफर्म कर दीजिएगा। जी अटेंडेंस बिल्कुल कंफर्म होगी, लेकिन लास्ट सेशन में होगी, अभी नहीं होगी। सर